Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDI practice series. Hope you're doing well. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular side. So this says tomato, obviously a pseudonym for Zomato. So Tomato is a popular app-based food delivery company. The company did a very good business in an upscale neighborhood of a city last year. Alfred, Bharat, Chandrika and Datu are the four employees of the company, each of whom delivered a number of orders over 5 days of the week, Monday through Friday. The following table shows the number of orders delivered by each of these employees over the 5 days in an ascending order. So ये table में basically ascending order में बस values given है. It is not clearly mentioned कि कौन से day पे कितना order है. For example, Alfred के orders क्या है 21, 25, 29, 29 and 50. But the order is not specified. So you'll have to figure out which order is delivered on which day through Monday से लेके Friday तक, right? Now some additional points are known and on the basis of this we have to figure out the following information. Okay, so let's first make a table out of this. एक simple सा table हमने create करा है. Alfred, Bharat, Chandrika and Dattu, and these days represent, let's say, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and finally Friday. Now let's start reading the conditions one by one. So पहला condition क्या बोलता है? The day when Alfred delivered his maximum number of orders of the week was immediately followed by the day when he delivered his minimum number of orders of the week. Right. तो Alfred के लिए maximum number of orders वाला जो day है that has to be immediately followed by the minimum number of orders वाला day. That means Alfred के लिए 5 जगह जो values जाएंगी इनमें से उसमें जहाँ पे भी 50 आप डालोगे, जहाँ पे भी 50 आप लिखोगे, that has to be immediately followed by this 21. Right, so this is the condition given. Also it is said this is the same for Dattu. तो Dattu के लिए भी क्या है 50 has to be followed by 22. Let's just write that down. So 50 has to be followed by 22. Now this first statement is done. Now let's move to the next statement. So this says the day when Chandrika delivered a minimum number of orders of the week. So Chandrika delivered a minimum number of orders of the week, that is 30, was immediately followed by the day when she delivered her maximum number of orders of the week. So this is exactly opposite of what was given in the first statement. So Chandrika ka minimum has to be followed by her maximum, that is 30 has to be followed by 40 for wherever it is. Right, so this is the condition with us. Now the second statement is also done. Now the third statement says Bharat delivered his 3 highest number of orders in 3 consecutive days in an ascending order. That means Bharat के लिए 3 highest order क्या है 38, 42, 43. So these have to come together and also in that same order, that is 38 followed by 42 followed by 43. अब ये जहाँ पे भी आएंगे बट इनकी लिमिटेड पॉसिबिलिटी होगी, या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे. दैट इज द ओनली 3 पॉसिबल केसेस वी कैन हैव. नाउ केसेस बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, विल फिगर आउट दैट लेटर. थर्ड स्टेटमेंट इज डन. अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट, दिस लुक्स अ लिटिल कंडीशनल. उसको पढ़ने से पहले दिस फिफ्थ स्टेटमेंट इज वेरी इजी. The total number of orders delivered by the 4 employees on Monday. So total number of orders by the 4 employees on Monday. This columns addition on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are 140. So let's just write them down. 140, 132, 120, 124 and finally 163. So these are the 5 orders. Now this statement is done. Now let's move on to the fourth statement. क्या बोल रहे हैं यार ये देखो. Suppose we define a parameter m. So m से डिफाइन करा गया हमने फॉर ईच ऑफ द 5 days. तो हर 5 days में से किसी भी डे के लिए हम m डिफाइन कर सकते हैं. Now how do we define this? m is actually equal to the difference between the maximum and the minimum number of orders delivered by the 4 employees on a given day. Now अब ये क्या बोल रहा है, m बेसिकली हर डे के लिए आप निकाल सकते हो. और कैसे निकलेगा, इन 4 वैल्यूज में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी चाहे जहां पे भी हो और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड योर m फॉर ईच ऑफ द गिवन 5 days. राइट, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम उस कॉलम में आप देख के वो आप m बता सकते हो. अच्छा, अब और दिया क्या है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ m आर 29 एंड 16 रिस्पेक्टिवली. तो m तो आप निकालना सीख जाओगे, ठीक है, हर कॉलम में मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होगा ना. 5 आपकी वैल्यूज ऑफ m आएंगी ना, उन 5 वैल्यूज ऑफ m में भी मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना आएगा 29 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m कितना मिलेगा आपको 16 मिलेगा.
राइट. सो दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अस, बिकॉज अभी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इवन इफ वी नो कि ये वैल्यूज स्पेसिफिक ऑर्डर में आएंगी. नाउ लेट्स फोकस ऑन दीज वैल्यूज. जैसे m आपका 29 के लिए, m आपका 16 के लिए. अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान से वैल्यूज को देखना पड़ेगा. वंस यू फिगर आउट ये 29 बनेगा कैसे, देन दिस सेट इज सिंपल. नाउ अगर आप यहाँ पे सारी वैल्यूज में वैल्यूज को अगर नोटिस करो, 29 बनने का सिर्फ एक ही तरीका है. एक ही तरीका क्यों है? जैसे अगर आप यहाँ से सोचो, इन पूरी टेबल में मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है? मिनिमम वैल्यू आपको 21 दिख रहा है एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या दिख रहा है? 50 दिया है. सो ये पॉइंट ये है ना कि दिस इज नॉट अ रैंडम वैल्यू, राइट. इसमें इस पूरे टेबल में जो दो लीस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज हैं उन्हीं का डिफरेंस एग्जैक्टली 29 है. दैट मीन्स 29 बनने का एक ही यूनिक तरीका है, दैट इज 21 एंड 50. ऑल्सो 21 फिर किसका यूज होने वाला है? अल्फ्रेड का यूज होने वाला है. और 50 किसका यूज होने वाला है? दत्तू का यूज होने वाला है. दोनों आपका नहीं आ सकता बिकॉज ये m की वैल्यू एक कॉलम में आना ही चाहिए, राइट. सो इट हैज टू बी फॉर टू डिफरेंट पीपल. ऐसा नहीं है कि अल्फ्रेड का 21 एंड 50 ले लोगे. एक कॉलम में बेसिकली आपका 21 एंड 50 आना चाहिए. सो 21 इसी का है, दैट मीन्स फिर 50 इसका होना पड़ेगा और किसी का 50 है नहीं, राइट. सो हाँ, अब पॉइंट ये है, आप बोल सकते हो कि क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन हो सकता था? हाँ, हो सकता था, बिल्कुल एक नया प्रॉब्लम बन सकता था. बट इन्होंने जो भी क्वेश्चन बनाया है 29 के लिए बनाया है, दैट मीन्स दिस पार्ट हैज टू बी सिंपली विजुअलाइज्ड. और अगर कोई और पॉसिबिलिटी होती 29 बनने की, राइट, अगर जैसे मान लो यहाँ पे भी किसी और जगह 21 और एक जगह 50 होता, देन दिस सेट वुड हैव बिकम एक्चुअली डिफिकल्ट, राइट. तो अभी फिलहाल वो है नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द डोएबल सेट्स. बस तुरंत से आपको बस 29 की पॉसिबिलिटी फिगर आउट करनी थी. नाउ 29 बनने के लिए 21 एंड 50 समझ में आ गया. अच्छा, इसको हम प्लेस करने से पहले एक बार इस 16 के बारे में भी सोचें. क्या 16 बनाने का कोई तरीका दिख रहा है? अब 16 के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा फिगर आउट करना पड़ेगा बिकॉज 21 एंड 50 तो लीस्ट एंड हाईएस्ट के बेस पे हमने डिसाइड कर लिया, उसी से बन रहा है, मतलब और कोई केस बनना नहीं था. और 16 के लिए अब थोड़ा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा. तो 16 के लिए एक एक करके जैसे चेक कर लो. जैसे 25 के साथ 16 बनना है तो बेसिकली ऐड करके 41 आना चाहिए. 41 यहाँ पे नहीं है. 29 के साथ 16 ऐड करोगे तो 45 बनेगा. वी डोंट हैव अ 45. देन 50 के साथ तो ऑब्वियसली हम ऐड नहीं करेंगे, तो 50 माइनस 16 में भी हो सकता था, दैट इज मे बी 34, बट 34 भी नहीं है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. 24 के साथ देखो, 24 प्लस 16 इज 40 नहीं है. 25 प्लस 16 दैट इज 41, वो भी नहीं है. 38 प्लस 16 वो ऐड अप करके 50 से ऊपर चला जाएगा, नॉट पॉसिबल. 42 में ऐड नहीं कर सकते, 42 में सब ट्रैक करना पड़ेगा, सो दिस इज 26, वो भी नहीं है आपके पास. 43 माइनस 16 करना पड़ेगा क्योंकि ऐड नहीं कर सकते, 50 के ऊपर चला जाएगा, हो ही नहीं सकता. तो 43 माइनस 16 दिस वुड गिव अस 27, वो भी नहीं है आपके पास. नेक्स्ट मूव करते हैं इस 30 के साथ. तो 30 के साथ देखें तो 30 के साथ इट हैज़ टू बी नो 38 के साथ मिल जाएगा आपको. 38 प्लस 16 तो नहीं करना पड़ेगा, 38 माइनस 16 अगर हम करें तो 38 माइनस 16 से आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट हैज़ टू बी 22. सो 22 एंड 38 इज द पॉसिबिलिटी वी आर एक्चुअली लुकिंग एट, राइट. सो ये वाला 38 और ये वाला 22. सो दीज टू वैल्यूज एक्चुअली गिव अस 16 का डिफरेंस. इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू आप चेक करो तो आपको किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको 16 का डिफरेंस नहीं मिलेगा. आप 30 इस वाली रो में भी आते तो भी 30 के साथ 16 माइनस करने का तो कोई सवाल ही नहीं है बिकॉज लीस्ट वैल्यू आपकी 21 है. तो ऐड करके चेक करना पड़ेगा. 30 के साथ आप 16 ऐड करोगे, 46 नॉट देयर. 33 प्लस 16 49 नॉट देयर. 35 16 माइनस नहीं करेंगे बिकॉज 21 से नीचे चला जाएगा. सो ऐड भी करोगे तब भी 50 से ऊपर चला जाएगा. तो इस रो में भी किसी के साथ आपको वैल्यू नहीं मिलने वाली है. दैट मीन्स द ओनली पॉसिबिलिटी वॉज ऑफ 22 एंड 38, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेट, ये वैल्यूज फिगर आउट करना. नाउ अब स्टार्ट करते हैं. किसी कॉलम में जैसे आपको 21 एंड 50 दिखना है, ऑल्सो 21 हैज टू बी फॉर एल्फ्रेड और 50 हैज टू बी फॉर दत्तू. अब 21 एंड 50 हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? नाउ सबसे पहले अगर आप रियलाइज करो, जैसे कि
ये जो 21 है, ये 21 आप मंडे को नहीं प्लेस कर सकते, बिकॉज 21 से पहले एक 50 को आना पड़ेगा। सो 21 एंड 50 कैन नॉट बी देयर। तो इस तरीके से हम इसको सोचना एक्चुअली में स्टार्ट करेंगे। नाउ किसके बेस पे मैं केस बनाना प्रेफर करूंगा, मैं भरत के केस पे स्टार्ट करना चाहूंगा, बिकॉज भरत का मेरे को पता है कि जहाँ पे भी इसका या ये वाला 38 आना है, राइट, भरत का एक 38 और उसी के करस्पॉन्डिंग दत्तू का 22 आना है, 38 एंड 22 इन सम ऑर्डर, राइट, चाहे वो मंडे आए चाहे ट्यूसडे आए, बट उसकी सारी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, बिकॉज 38 के बाद 42 एंड 43 हैव टू बी कंसेक्यूटिव। तो 38 का याद करो, स्टार्टिंग में हमने बोला था 38 कहाँ पे आ सकता है, या तो मंडे आ सकता है, या तो ट्यूसडे आ सकता है, या फिर मैक्स टू मैक्स वेडनेसडे आ सकता है, बिकॉज थर्सडे नहीं आ सकता, फ्राइडे नहीं आ सकता, बिकॉज उसके बाद आपको 42 एंड 43 भी प्लेस करना है। दैट मीन्स 38 की सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज है, मंडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। तो उसके अराउंड अगर मैं सोचूं, लेट्स से इफ आई से दिस इज 38, राइट, तो अगर ये 38 है तो फिर ये वाला जो 22 है दत्तू का वो यहाँ आना पड़ेगा। बट इसमें तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इस रो की वजह से। इस रो में देखो तो 22 के जस्ट पहले आपका 50 आना पड़ेगा ना, तो ये तो स्पेस ही नहीं बची, दैट मीन्स यहाँ पे 38 नहीं हो सकता। अच्छा, लेट्स चेक फॉर द ट्यूसडे वन। सो अब यहाँ पे अगर 38 आया, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगर 22 आया तो इस जगह पे क्या आना पड़ेगा आपका, 22 से जस्ट पहले 50। अच्छा याद करो, इसमें भी आपका ये जो 21 एंड 50 बनना था, इसमें 50 इसका लेना है दत्तू का, और 21 आपका अल्फ्रेड का लेना है। बट प्रॉब्लमैटिक है, क्यों, क्योंकि 21 अगर आपने मंडे को लिया तो 21 के पहले तो 50 को डालना पड़ेगा, 50 की स्पेस ही नहीं है। दैट मीन्स अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 38 यहाँ पे भी नहीं है, 38 इज एक्चुअली हियर। सो 38 आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। नाउ लेट्स जस्ट क्लियर दिस अ बिट। 38 की हमें यूनिकली सिचुएशन पता चल गई कहाँ पे आना है। सो दिस इज 38, अब ये 38 है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग ये वाला क्या आ जाएगा, 22। अभी जो भी अब यूनिकली अब लिख सकते हो लिख लो पहले। तो 22 से जस्ट पहले आपका क्या आना है, यहाँ पे 50 आना है। 38 हैज़ टू बी फॉलोड बाई 42 एंड 43, और इस 50 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आना है आपका 21, ऑल्सो 21 के जस्ट पहले यहाँ पे क्या आना है आपका 50। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी, हमने क्रैक कर लिया है। अब रिमेनिंग वैल्यूज के लिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये कॉलम का एडिशन का जरूरत पड़ेगा, राइट। नाउ अब हम कहाँ से स्टार्ट करें, अब आप देखो एडिशन ही आपको बेसिकली चेक करने हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसी में हम फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज आपने लिख ली है, एक काम करो आप उनको क्रॉस आउट कर लो या सर्कल कर लो, वट एवर यू विश। तो 42 43 हो गया, 50 एंड 21 हो गया यहाँ पे, देन 50 एंड 22 हो गया। नाउ अब किस कॉलम से चेक करना स्टार्ट करें, ऑब्वियसली जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज पता होंगी वहीं से स्टार्ट करना भी चाहिए, जैसे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे। मे बी लेट्स स्टार्ट विद दिस ट्यूसडे। अभी ट्यूसडे में अगर आप फिगर आउट करो, जैसे कितना लिखा हुआ है आपके पास 21 प्लस 50, सो 21 प्लस 50 71। अब 71 आपके पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद दिस 61। तो ये जो रिमेनिंग दो वैल्यूज होनी चाहिए उनका सम कितना आना चाहिए आपका 61, भरत एंड चंद्रिका के लिए स्पेसिफिकली। अब भरत एंड चंद्रिका में आपको 61 बनाना है, तो या तो 24 के साथ बनेगा या 25 के साथ बनेगा, तो सिंपल हिट एंड ट्रायल करके चेक कर लो। तो 24 के साथ क्या आप 61 बना पाओगे, 24 के साथ 61 अगर बनना है सो यू नीड अ 37, नहीं है यहाँ पे, तो 24 के साथ तो बन ही नहीं सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज विथ 25। अब 25 के साथ आएगा क्या, 36, राइट। सो 25 एंड 36 वुड गिव यू 61। सो 25 आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, 25 इज हियर, दिस इज डन, और यहाँ पे फिर आपका 36 तुरंत से नीचे चलाएगा, राइट। सो दिस इज 36। ओके, अब हम यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भरत के लिए एक ही वैल्यू रिमेनिंग है, दैट इज 24, तो 24 तो फिर यूनिकली फिल हो जाएगा, सो दिस हैज टू बी 24। नाउ अब यहाँ पे एक्चुअली मैं मंडे के लिए भी पहले कर सकते हैं, वेडनेसडे के लिए भी कर सकते हैं, तो वेडनेसडे के लिए हमने डिसाइड करा था वही करते हैं, राइट। लेट्स बी ऑनेस्ट टू दिस। सो वेडनेसडे के लिए हम नोटिस करें तो 38 एंड 22 कितना हो गया आपका 60 हो गया है, रिमेनिंग इज ऑल्सो 60। बस आप चेक करो 60 कैसे बनेगा, ये किसके लिए बनता है, अल्फ्रेड एंड चंद्रिका के लिए। तो अल्फ्रेड एंड चंद्रिका में आपका 60 का सम कैसे बनेगा, 25 के साथ 60 बनाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा 35। डू वी हैव 35, यस। 25 एंड 35 इज वन पॉसिबिलिटी, चेक कर लेते हैं क्या ये यूनिक है कि नहीं है। सो अगर मैं 29 के साथ 60 बनाऊँ तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा 31 तो नहीं है,
ओके अगेन 29, दूसरा भी 29 ही है, तो 31 तो नहीं है. दैट मीन्स फिर आपका 25 एंड यहाँ पे 35. तो 25 एंड 35 ये दो आपके वैल्यूज यहाँ फिट हो जाएंगे. अच्छा, अब यहाँ पे बिफोर चेकिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे एक चीज नोटिस करते हैं. यहाँ पे चंद्रिका के लिए 30 एंड 44 हैव टू बी कंसेक्यूटिव. 30 44 कहाँ आ सकता है, यहाँ पे तो प्लेस बचा नहीं, दो ही प्लेस बचा है, तो इन दोनों जगह पे 30 एंड 44 हैव टू बी देयर. सो दैट मीन्स दिस इज 30 एंड दिस इज 44. बिकॉज दिस इज 30 एंड दिस इज 44, तो इसमें जो आपकी रिमेनिंग वैल्यू बची दैट इज 33 विल ऑक्यूपाई द स्पेस. अब बिकॉज दिस इज 33 तो ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हो. सो 50 24 33, सो ये कितना हो गया 57, राइट. सो 57 ये हो गया एंड 50 हो गया 107. 107 इज डन. तो 140 माइनस 107 दैट गिव्स यू 33. तो ये वाला जो 33 है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. ओके अब यहाँ पे हम इन दो के लिए काम कर सकते हैं. तो 50 इंटू राइट. ओके नाउ थर्सडे के लिए चेक कर लो. थर्सडे के लिए कितना लिख चुके हो आप, 72 लिख चुके हो, राइट. 72 आप लिख चुके हो. आपको और रिमेनिंग कितना चाहिए, 124 माइनस 72 दैट इज 52, राइट. अब 52 अब आपका कैसे बनेगा, तो 52 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अल्फ्रेड एंड दत्तू को नोटिस करो. सो अल्फ्रेड एंड दत्तू का 52 दिस हैज टू बी डन बाय, देखो 29 तो रहेगा ही, 29 की अपने टेंशन ही नहीं, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज ही बची थी 29. तो एक्चुअली हमें सम के थ्रू सोचना ही नहीं चाहिए था. 29 कुड बी डन हियर, कुड बी डन हियर. 29 ये हो गए, ये दोनों तो आप वैसे भी इसके पिक निकाल लोगे. तो वैसे भी कितना था, ये 23 होने वाला था बिकॉज 52 चाहिए था. सो दिस इज 23 और इसमें जो रिमेनिंग वैल्यू बची है दैट इज 47 हैज टू बी हियर. वो आप चेक कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली ऐड करके 163 दे देगा, राइट. सो दिस इज हाउ दिस सेट हैज टू बी cracked wide open. Now we can go ahead and solve all the problems on this. Now, first problem, the number of orders delivered on each day for how many of the employees can be uniquely determined. यार हम सब कर सकते हैं. We have figured out uniquely for each of the employees for each of the days क्या उसका specific order होगा. So the number of orders delivered on each day for how many employees can be uniquely determined, all 4. Second problem, for how many orders did Bharat deliver on Thursday? So Bharat on Thursday has delivered 42 orders. Okay. Third, on which day did Chandrika deliver the maximum number of orders? On which day Chandrika delivered her maximum? So maximum कितना था 44. So this has to be Friday. Right, now the final problem, out of the number of orders delivered by the 4 employees, who delivered the minimum orders on Tuesday? So Tuesday में इनमें से किसने minimum order deliver करा? This has to be Alfred. That is option first. Right, so once you crack this thing open, this set becomes actually a little doable, right? So I hope you have understood this. If you have any doubts, again you can put that in the comments. Thank you.